So many of you who know about ozone therapy might be a little repetition, but I see many new faces here, so I think it will be a good opportunity to know something different. So let's begin the journey of ozone therapy. When we talk about ozone therapy, it was invented way back in 1840. So it's not a new therapy, and it is not at all new in India also. We've been practicing ozone therapy for last 22 years in India. Uh, uh, Today, somebody is, uh, Dr. Jalpa, the screen, somebody's scribbling on it. Okay, so I'm like, I'm not doing it. Anyway, should I continue, Dr. Yes, yes. Jalpa? Please continue. Okay, so as you see, ozone therapy is widely practiced in Europe, which where it was invented, which is Germany. It is also widely practiced in Russia, Cuba, South America, and also in America. In more than 25 states in America practice ozone therapy as an alternative healing complementary therapy. So in India also it has been used as an adjuvant complementary therapy. Also, it is also used under naturopathy. The first uses of ozone therapy was way back in 1911 in Lancet Journal, which is the most prestigious medical journal up till date, is where ozone therapy report was presented on whooping cough, asthma, bronchitis, tuberculosis, and many other diseases. So use of ozone is not new; it's been established since very long. Also, the first use of ozone was also there in First World War, which was treatment of mustard gas burns and septic wounds. Today, also in day-to-day life, like we see many patients of open non-healing wounds, which do not really have any other option than ozone therapy, and why we will come to know in few slides. So to use ozone therapy effectively, a small shift in your thinking is needed. And what is that shift? Is that we cannot treat a single part without understanding the whole. So single part has a correlation with the whole, and which is very important. So no part can be understood without understanding its relationship with the whole. And this is the key method for ozone. Ozone does not treat a single element, but it treats the whole, the whole body, and its holistic method of treatment is Dr. there. Millie, your voice is So dragging. when we talk about ozone, uh, hello, Yeah, your connection is is it slightly better low. now? Yeah. Okay, now it's okay. Okay. So ozone, oxygen formula is O2, which we all know, abundant in nature, abundant in atmosphere. But ozone, which is there in the stratosphere, which is in a good ozone layer, but we also know that we need to use this ozone for our body, treatment. So giving ozone, Dr. Millie, just 1 second. Someone is again scribbling. yeah, So, yeah, I don't know what is whoever happening. is sharing the screen, please stop doing it. Whoever is doing the scribbling part, please stop doing it. And Dr. Millie, one request from the audience that Yeah, please talk in Hindi as well. In okay. between, ठीक है हिंदी में बात करते हैं. please continue. या ओके. सो जैसे आप सबको पता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 है. जब हम ओजोन थेरेपी बोलते हैं तो ये O3 होता है. O3 जब बॉडी में देते हैं किसी डिसीज के लिए, ये ट्रीटमेंट को ओजोन थेरेपी बताया जाता है. ये ओजोन थेरेपी ऐसी ट्रीटमेंट है जहां जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन तो बढ़ता ही है, उसके साथ ऑक्सीडेशन भी होता है. ऑक्सीडेशन किस चीज का है, डिसीज के हिसाब से बताते हैं. तो अगर रूमेटिज्म लेते हैं तो वहां आपको आपका ऑटो इम्यून बॉडी कंपोजिशन चेंज करना होता है, तो उस हिसाब से ओजोन का कंसंट्रेशन यूज करते हैं. अगर आप इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ओजोन को चूज किया जाता है क्या कॉन्सेंट्रेशन से. तो ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बताए गए हैं जो हम ट्रीटमेंट में सिखाते हैं और देते हैं. So ozone
ये natural therapy है. It's alternative and it is very for detoxification, rejuvenation. At the same time, it is very good for infection of any kind of infection, say from bacteria, virus to any other. And अगर आपको simple term में समझना है तो ओजोन ये ऑक्सीजन का बड़ा भाई है या फिर एक ऑक्सीजन का एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है जो आप ऑक्सीजन जो आप नॉर्मली प्राणायाम से ले सकते हैं, पर वो अगर डिसीज्ड है, अगर आप डिसीज्ड हो, आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप प्राणायाम या योग करके ये ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो ये क्विक फिक्स हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ओजोन थेरेपी से कर सकते हैं. सो ओजोन थेरेपी आपके शरीर में कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है. तो ये जब हम आपके शरीर में देते हैं ऑक्सीजन और ओजोन का कॉम्बिनेशन, तो पहले तो सबसे पहले आपका इन्फेक्शन कम होता है. आपका इन्फेक्शन कम होने के साथ आपके हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है. हार्मोन्स को बैलेंस किया तो आपका एनर्जी लेवल्स बढ़ जाता है और आपकी बॉडी की इफेक्टिविटी बढ़ जाती है. इसके साथ ओजोन ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है. नाउ ब्लड सर्कुलेशन कैसे इम्प्रूव करता है कि ओजोन आपके आरबीसी के साथ अटैच होके वो आपके छोटे से छोटे मांसपेशियां या छोटे से छोटे टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है. इसके साथ आपका इम्यूनिटी बढ़ा देता है और ऐसे नहीं बढ़ाता है कि एकदम सडनली आपको बहुत स्टिमुलेशन हो जाए. इम्यूनिटी को इस तरह से बढ़ाता है कि आपका बॉडी बैलेंस में रहे, ना तो स्टिमुलेशन रहे ना सप्रेशन रहे. तो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए ओजोन बहुत ही अच्छा कार्यक्षम है. इसके साथ ही ओजोन से आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है. अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, पर अगर आपको कोई भी डिसीज है तो आपके शरीर में जो आप केमिकल चेंजेस होते हैं इसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं. ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए ओजोन थेरेपी बहुत ही अच्छा कार्यक्षम है, क्योंकि ये आपके शरीर की डिसीज फाइटिंग कैपेसिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है. इसके साथ ही आपका माइक्रो सर्कुलेशन जो है, जो बोला जाता है, वो ओजोन थेरेपी से बढ़ता है. ये बहुत ही अच्छा नेचुरल पेन किलर है. अगर यानी आप ओजोन थेरेपी लेते हैं या ओजोन थेरेपी के इंजेक्शन नी जॉइंट के लिए या बैक के लिए लेते हैं, तो आप बिना पेन किलर लिए बिना आपके पेन को मैनेज कर सकते हैं. इसके साथ ही ये हीलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है. तो ये है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ओजोन थेरेपी, जिसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप और समझते जाएंगे. सो इन जनरल ओजोन थेरेपी के अच्छे जो इफेक्ट्स है वो आप लिवर में देख सकते हैं. रेड ब्लड सेल्स को अच्छा करता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है. उसके साथ ही माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, तो वो हार्ट के लिए भी ज्यादा अच्छा है. आपके ओजोन थेरेपी आपके शरीर में जो ज्यादा एसिड है उसको नलिफाई करने में यूज होता है, तो वो आपके लिए आपके शरीर में एंटासिड के जैसे भी काम करता है और धीरे धीरे आपका पूरा बॉडी फंक्शन को वो स्टिमुलेट करता है और बेटर बनाता है. ये आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन के जैसे भी काम होता है. तो अलग अलग 16 से ज्यादा प्रकार की एप्लीकेशंस जो ओजोन थेरेपी की है वो आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कर सकती है. तो जब हम और आगे जाएंगे तो वी कैन कम टू नो अबाउट हाउ वी कैन यूज इट. Now, main use of ozone therapy, you can say it is wonderful in infection. Ozone therapy is an oxygen molecule which breaks the बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है या वायरस का जो सेल वॉल है उसको वो ब्रेक करके उसका रेप्लिकेशन, जो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, वो कम करता है. इसके साथ ही अगर सर्कुलेशन में देखा जाए तो माइक्रो एंजियोपैथी, स्ट्रोक और एंजाइना और वेरिकोज वेन्स में सर्कुलेशन भी बढ़ाता है. Now, multiple disabled children यानी CP children, अगर CP children देखा जाए तो इनका मेन प्रॉब्लम बर्थ के टाइम पे हाइपोक्सिया था. ओके, हाइपोक्सिया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन एट द बर्थ टाइम, और तभी उनको सेरेब्रल पैल्सी होता है. अगर ये बच्चे हम छोटे उनकी छोटी एज में ही हम ओजोन थेरेपी चालू कर दे तो हम इनका हाइपोक्सिया जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है वो करेक्ट कर सकते हैं
और इससे इनकी आप मोबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, उनका सेरेब्रल पाल्सी का ग्रेड कम नीचे आ सकते हैं, बच्चे बहुत सारे नॉर्मल काम कर सकते हैं, जो बैठ नहीं सकते बच्चे बैठने लगते हैं, और बहुत कुछ उनमें डेवलपमेंट हम देखते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस भी है। इसके साथ ही ओजोन थेरेपी पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल एनाल्जेसिक है। इसके साथ ये आपके घुटनों का या बैक एक या जहाँ पे भी पेन है, जहाँ पे सर्कुलेशन हैम्पर हुआ है, तो उसको भी इम्प्रूव करने में काफी कार्यरत है। अभी डायबिटीज मेलाइटस और उसके कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो ओजोन थेरेपी आपके पैनक्रियास का बीटा लैंगर सेल्स है उनको इम्प्रूव करता है। एट द सेम टाइम इसके कॉम्प्लिकेशन सर्कुलेशन हैम्पर होने के वजह से होते हैं, जो हम ओजोन थेरेपी से काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, मेरा खुद का अनुभव कैंसर के पेशेंट्स पे बहुत अच्छा रहा है। ओजोन थेरेपी हम कैंसर पेशेंट्स को सपोर्टिव थेरेपी के यूज में देते हैं। कैंसर ये एक सेलुलर हाइपोक्सिक स्टेट है और उनका काम और कुछ नहीं है, जस्ट वो कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो हम अगर ओजोन थेरेपी देते हैं तो ये सेलुलर हाइपोक्सिक, जो सेल में कम ऑक्सीजन है, वो हम रीबैलेंस करके उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, और धीरे धीरे वो ट्यूमर भी कंट्रोल में आता है, साइड इफेक्ट्स भी कंट्रोल में आते हैं। गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन और इनफर्टिलिटी, अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो ओजोन थेरेपी काफी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि कोई भी लोअर लाइफ फॉर्म बैक्टीरिया वायरस फंगाई कैन नॉट स्टैंड द ऑनस्लॉट ऑफ ओजोन थेरेपी। यानी ये ऑक्सीजन और ओजोन का कॉम्बिनेशन उनको टॉलरेट नहीं हो सकता है, और इसीलिए वो काफी उनका रिडक्शन हो जाता है और बेटर इम्प्रूवमेंट देता है। एट द सेम टाइम एलर्जिक कंडीशंस रहेंगी तो अस्थमा, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस को इम्प्रूव आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने से होता है। तो वैसे हम ओजोन थेरेपी के यूज बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस में देख सकते हैं। कौन कौन से व्यक्ति ओजोन थेरेपी नहीं ले सकते? सो कोई भी चीज बिना कॉन्ट्रा इंडिकेशन के से नहीं आती है। तो हाइपरथायराइड, अगर आपको हाइपर यानी अगर आप TSH बहुत ही ज्यादा लो है तो आपको ओजोन थेरेपी नहीं दे सकते, बिकॉज हाइपरथायराइड में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। यूजुअली अभी हम रेगुलर में लोगों को हाइपोथायराइड देखा जाता है, जिसमें TSH की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अगर आपका TSH लेस देन 1 जाता है तो आपको हाइपरथायराइड हुआ हो सकता है। तो उस कंडीशन में ओजोन थेरेपी नहीं दिया जाता है। अगर एक्टिव ब्लीडिंग है, कहीं पे भी आपको एक्टिव ब्लीडिंग साइट है या हिमैचूरिया है, यानी यूरिन में ब्लड आ रहा है या स्टूल में ब्लड आ रहा है, और अगर वो सिस्टमिक है तो हम ओजोन थेरेपी नहीं देते हैं, क्योंकि ओजोन थेरेपी सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो अगर आपका ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते। इसलिए हम पेशेंट जब भी देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसका केस हिस्ट्री लिया जाता है, उसका पूरा इफेक्ट समझाया जाता है, और उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। और ये G6PD डेफिशिएंसी करके एक G6PD एंजाइम है जो आपके ब्लड में पाया जाता है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। ये G6PD डेफिशिएंट यूजुअली पारसीज और सिंधीज में देखा जाता है। तो इनका अगर ये लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम उनका G6PD ब्लड लैब में चेक करवा के बाद में ही ओजोन थेरेपी स्टार्ट करते हैं। वैसे ओजोन थेरेपी के मल्टीपल कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, ये 3 मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम ओजोन थेरेपी अवॉइड करते हैं। ऑल्सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हम ओजोन थेरेपी नहीं देते हैं। आफ्टर 4th month of pregnancy, ozone therapy can be used in patients. So main effect of ozone therapy हम बोलते हैं, अगर आप देखें इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको ओजोन थेरेपी कौन से डिसीज में काम हो सकती है। सो ओजोन थेरेपी आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाता है, यानी अगर आपको बॉडी में बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मेनी टाइम्स अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है ज्यादा कुछ नहीं है, ब्लड रिपोर्ट ठीक है, सिर्फ स्ट्रेस होगा, तो ये जो स्ट्रेस वो डॉक्टर जो बताते हैं और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं,
वो वैसे ही हम एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ओजोन थेरेपी अगर दे तो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका इकोनोसाइड सिंथेसिस बोलते हैं जो आपके प्लेटलेट को इम्प्रूव करता है। तो अगर कहीं पे भी आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन है जिसमें हम फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ जाता है, उसमें प्लैक्स हो जाते हैं, ये सब कम करने में भी ओजोन थेरेपी काम होता है। Germicidal power is also very important part. So germicidal power, ozone improves your infection. तो कोई भी इन्फेक्शन रहेगा आपके बॉडी में, हम ओजोन थेरेपी यूज करके वो इन्फेक्शन को घटा सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल मॉड्यूलेटर, अगर ऑटो इम्यून कंडीशंस है, जैसे कि मानो आपको अगर कोई आरए है, ल्यूपस है, या फिर ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस है, या हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशंस है जिसमें कन्वेंशनल मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। इसमें हम ओजोन थेरेपी काफी अच्छे से यूज करके उनको इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। जब आप ओजोन थेरेपी करते हैं, हम आपकी कोई दूसरी ट्रीटमेंट स्टॉप करने नहीं बोलते, आप जो कर रहे हैं उसके साथ ओजोन थेरेपी करेंगे तो आपको ये इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है जो आपके शरीर में पॉजिटिव चेंजेस लाएगा और आपकी दवाई भी अच्छे से काम करेगी। नाउ मेटाबॉलिक रेगुलेटर जो बोलते हैं, अभी अगर थोड़ा बहुत आपको केमिस्ट्री का अगर बोला जाए तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके बॉडी में होता है। जब आपके शरीर में डिसीज है तो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब आपको कम एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं बॉडी में काम करने के लिए। अगर आपके शरीर में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के यूज से होता है, तो उसमें मोर एटीपीज आर जनरेटेड। तो ओजोन थेरेपी शिफ्ट्स योर बॉडी फ्रॉम एटीपी, more ATP, so less from anaerobic to aerobic respiration. So ozone therapy will improve your metabolism in general. At the same time, ozone therapy increases your oxygen availability, and it also improves the utilization at the tissue level. So आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाने में के लिए काम करता है और इससे काफी ज्यादा फायदा होता है। अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल ये 6 बायोलॉजिकल इफेक्ट देखते हुए कोई भी डिसीज के बारे में सोचे, तो आपके शरीर में क्या डिसीजेस का हम बोल सकते हैं। एक कि अगर आपको कोई भी पैथोफिजियल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिसऑर्डर में डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, हार्ट डिजीज आते हैं, ये कार्डियक इश्यूज आते हैं, ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आते हैं, तो ओजोन थेरेपी उसमें काम कर सकता है। और सभी टाइप के इन्फेक्शन में काम कर सकता है, ऑटो इम्यून कंडीशन में काम कर सकता है। तो जब ये पूरा देखा जाए तो बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि ये किसमें काम नहीं करता। तो हम बताना चाहते हैं कि ये अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, अगर आपको कोई फ्रैक्चर है या फिर और कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, तो उसमें ओजोन थेरेपी काम नहीं करता। यानी फॉर एग्जांपल हर्निया में ओजोन थेरेपी का कोई रोल नहीं है। अगर इंग्वाइनल हर्निया बोला जाए कि अम्बिलिकल हर्निया बोला जाए, बिकॉज ये स्ट्रक्चरल चेंज है, यू नीड टू मॉडिफाई इट विद सर्जरी। ऐसे जो स्ट्रक्चरल अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हीलिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्चर को यूनाइट करने के लिए ओजोन थेरेपी काम नहीं कर सकता। सो इस हिसाब से मेडिसिन में अगर मेडिकल कंडीशन है तो ओजोन थेरेपी काफी इफेक्टिव है। सो अगर आप थोड़ा डीपर में जाएंगे समझने के लिए कि ओजोन थेरेपी किस हिसाब से काम करता है, तो ओजोन थेरेपी आपके शरीर में आपका आरबीसी यानी लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल्स जो हम बोलते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, और उसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हम ग्लूटाथियोन बोलते हैं, उसको इंप्रूव करता है। सो आपका शरीर बेटर और आपका आरबीसी बेटर फंक्शन करने के लिए कार्यक्षम होता है ओजोन थेरेपी की वजह से। ये एक पिक्चरिस्टिक इमेज है जिसमें हम बताते हैं कि प्री एंड पोस्ट ओजोन थेरेपी करने के पहले और ओजोन थेरेपी करने के बाद क्या चेंजेस दिख सकते हैं। सो आपका सर्कुलेशन बढ़ाता है और ऑक्सीजन, तो ये जो आप अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो ये प्री ओजोन जहाँ पे सर्कुलेशन सिर्फ
80 to 60 बताया गया है, और हम उनको ओजोन थेरेपी देते हैं, और पोस्ट ओजोन अगर उनका सर्कुलेशन देखते हैं तो वो 100 to 90% हो जाता है. So ozone therapy on record, on the paper, we can show that it is improving your oxygenation. At the same time, ozone therapy अगर आप आपके अगर कोई डिसीज है, सर्कुलेशन है, तो वहां पे ये जो ब्लू जोन बताया जाता है, वो ब्लू जोन जो इंडिकेशन है कि हमारे शरीर में सर्कुलेशन कम है, और रेड जोन यानी आरबीसी का सर्कुलेशन. तो अगर आपका शरीर में आपका थर्मोग्राफिकली इमेजिंग करते हैं तो आपके शरीर में देख सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ गया है फ्रॉम ब्लू टू रेड. So that's how it shows that it improves the local better temperature and it improves the circulation. At the same time, ओजोन थेरेपी आपके शरीर में इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स है यानी सफेद रक्त कण से बनते हैं और जो आपकी डिसीज फाइटिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वो हम इम्प्रूव करते हैं. सो अगर आप व्हाइट ब्लड सेल्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, जिसको हम आपके बॉडी की आर्मी बताते हैं, और वो आर्मी के लीडर्स हम बताते हैं स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फ नोड्स को. तो ओजोन थेरेपी लिम्फ नोड्स और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके साइटोकाइन सिंथेसिस करता है. ये साइटोकाइन यानी आपके शरीर में ऐसे रोग प्रतिकारक शक्ति है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं. सो ओजोन थेरेपी इन जनरल इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी एंड मॉड्यूलेट्स योर इम्यूनिटी. तो अगर एक साथ देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट इन ऑक्सीजन हो गया, improvement in immunity हो गया, improvement in platelets aggregation, so it improves your growth factors, also it improves nitric oxide modulation. तो आपके शरीर में vasodilatation यानी circulation improve करने में काम करता है. At the same time, it improves the stem cell quality of your body. तो आपका bone marrow जो है, जहाँ पे super gifted erythrocytes बनते हैं, वो improve करता है, और आपके liver, spleen और अदर रेड ब्लड सेल्स को चार्ज करके इट कैन इम्प्रूव योर जनरल वेलबींग. बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हमने ओजोन थेरेपी के बारे में पब्लिश किए हैं. हम इंटरनेशनली भी देखते हैं कि ओजोन थेरेपी काफी मेडिकली काफी यूज कर सकते हैं. तो ये उसके पेपर्स है. आई विल क्विकली टेक यू थ्रू दैट. हाँ, सो अभी आता है, ये हमारा चार्ट है कि हमारा more than 16 different applications है. Depending upon the disease, हम different applications use करते हैं. अगर आप ओजोनेटेड वाटर देखते हैं, तो ओजोनेटेड वाटर आप ड्रिंक कर सकते हैं, जिससे आपको गैस कम होगा, एसिडिटी कम होगी. ओजोनेटेड ऑयल है हमारे पास more than 5 different वेज है ऑयल के, यानी हेयर ऑयल है, पिंपल्स वो जो हेयर फॉल और डैंड्रफ के लिए है, पिंपल्स के लिए हमारे पास रैपिड हील है, इन्फेक्शन सोराइसिस के लिए रैपिड हील यूज किया जाता है. वैसे अलग अलग सब प्रकार के ऑयल्स भी है. ओजोन बैगिंग जो नॉन हीलिंग और एक्जिमेटिस कंडीशन के लिए यूज करते हैं. ओजोन फनलिंग है, अगर आप किसी पेशेंट को बेड सोर्स है तो हम फनलिंग करके उसको ऑक्सीजन देते हैं, जहाँ पे हीलिंग जल्दी हो जाता है. ओजोन स्टीम सोना ये डिटॉक्स के लिए यूज होता है. ये आपके जो नॉर्मल स्टीम है उसके साथ हम ओजोन का गैस अगर दे दे तो आपका फुल बॉडी डिटॉक्स ओजोन से हो सकता है. At the same time, rectal insufflation is like an enema of ozone gas. So जैसे आप भस्ती होते हैं, पंचकर्मा होता है, वैसे हम ओजोन थेरेपी का रेक्टम में अराउंड 200 to 300 ml ऑफ ओजोन ऑक्सीजन मिक्सचर देते हैं, जिससे आपका गट इम्प्रूव होता है. एट द सेम टाइम लिवर इम्प्रूवमेंट होता है और आपका जनरल वेलबींग बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ जाता है. ईयर इंसफ्लेशन के लिए वजह से आपका कोल्ड कॉफ, सोर थ्रोट और ब्रेन सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट दिखाया जाता है. वजाइनल इंसफ्लेशन की वजह से अगर कैंडिडियासिस है, वजाइनाइटिस है, कैंसर ऑफ वजाइना वॉल है या कैंसर ऑफ सर्विक्स है, उसको हम ट्रीटमेंट वजाइनल इंसफ्लेशन के वजह से माध्यम से देते हैं.
सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और पेनफुल ट्रिगर पॉइंट। तो ओजोन एक बड़ा रोल पेन मैनेजमेंट में यूज होता है, जिससे आपका पेनफुल, अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर देते हैं ओजोन थेरेपी से। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 तो ऑपरेशन के लिए ही जाएगा, उससे कोई nobody can treat grade 4 osteoarthritis, but grade 3 tak ozone therapy can be really helpful and it gives very good results. At the same time, अगर बैकएक है तो पैरास्पाइनल इंजेक्शन जो आपका मसल टोन इंप्रूव करता है, और फिर मेजर ऑटो और माइनर ऑटो हीमोथेरेपी, ये अलग अलग दूसरे एप्लीकेशंस है। ओजोनेटेड सलाइन भी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डोसेज और डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन, वी चूज डिफरेंट एप्लीकेशन। सो ये हमारा, आप देख सकते हैं ओजोन मशीन है, हम ओजोन मशीन से ऑक्सीजन भर सकते हैं, रेक्टल देते हैं लाइक एन एनीमा, कान से ओजोन लिया जाता है। ये अगर देखें आप, मेरा एरो जहाँ पे है, सो इफ यू सी दिस इज अ वुंड एंड दिस इज हील्ड वुंड। ये सलाइन का फोटो है, ये ओजोन थेरेपी के इंजेक्शन का फोटो है, बैगिंग है, और ये नी जॉइंट के इंजेक्शन का फोटो है। सो फ्यू केस हिस्ट्रीज अगर आपको हम देखा, सो सोराइसिस, ये पेशेंट है जिनका psoriasis full-fledged on the leg and on the abdomen, or basically these are the red patches scaling of the skin. और ये herpes zoster अगर आप देखें तो completely herpes zoster 7 application में clean हो सकता है, completely निकल जाता है। ये जो psoriasis आपका प्री, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो आप अगर देखे जाए तो ओजोन थेरेपी स्टीम सोना या रेक्टल या मेजर ऑटो से उसको काफी कंट्रोल में लाया जाता है और कम हो जाता है। हर्पीज जोस्टर जैसा बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, जो आप अगर देखें तो प्री एंड पोस्ट कंप्लीटली हील हो गया है, दैट टू इन 7 एप्लीकेशंस। ओके, हर्पीज सिंप्लेक्स जो है उसके लिए हम ओजोनेटेड रैपिड हील ऑयल एप्लीकेशन भी बोलते हैं। इनिशियल और फाइनल इन 4 to 5 days it can control the whole of herpes simplex. Abhi verrucas, the treatment of verrucas, when we see there are multiple small boils on the hand which are so painful, so आप कोई बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इन इरप्शंस के वजह से, जो हम कंप्लीटली रिजॉल्व कर सकते हैं ओजोन थेरेपी, जो अराउंड 15 to 20 सेशंस देके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ओजोन थेरेपी में कोई भी चीज डे 1 यानी एक दिन में नहीं है, अक्यूमुलेटेड रिजल्ट मिलता है। जैसे हम बोलते हैं एक साथ 15 या 20 ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लाइकन प्लानस जो हम बता रहे थे, जो ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे आपके शरीर में पिन हेडेड साइज पैप्यूल्स, छोटे छोटे लाल दाने या फिर उसके आजू बाजू स्प्रेड हो जाते हैं, वो हम ओजोन थेरेपी से कंप्लीटली उसको बेटर करने का ये करते हैं। लाइकन प्लानस को बहुत ही अच्छे से उसका इचिंग, उसका रिकरेंस कंप्लीटली हील करने में काफी मदद हो जाती है। These are all skin condition also which are very painful. Now Grover's disease करके एक डिसीज है जहाँ पे आपके चेहरा आपका काला पड़ जाता है due to sun exposure or due to any chemical exposure या any other non-specific allergy बोलते हैं इसको, जिसको हम ओजोन थेरेपी से कंप्लीटली नेचुरल। सो अगर आप इनका फोटो यहाँ पे देखे तो काफी ब्लैक स्पॉट्स है उनके चेहरे पे, जो हमने कंप्लीटली निकाल दिया है और काफी ब्राइट और अच्छा चेहरा बन जाता है उसके बाद। सो ओजोन थेरेपी इन कैंसर, सो जो मेरा लास्ट 10 years का एक्सपीरियंस ओजोन थेरेपी एज अ नेचुरल थेरेपी इन कैंसर है कि ओजोन थेरेपी बहुत ही अच्छा, इफेक्टिव, सेफ एडजुवेंट थेरेपी है।
इसके साथ ये हम ऐसे नहीं बोलते कि आप कीमो रेडिएशन छोड़ दो, अगर छोड़ना है तो हम आपकी डिसीजन है, पेशेंट्स चॉइस होता है, पर हम जो बोलते हैं कि हम उसका एफिकेसी बढ़ा देते हैं कीमोथेरेपी का, इसके साथ ही उसका साइड इफेक्ट कम हो जाता है, तो आपको रिजल्ट बेटर मिलता है. It can be used alone if other line of treatment is not advisable. So बहुत सारे टाइम ओल्ड एज में या फिर ऐसे पेशेंट्स को डिक्लाइन किया जाता है कि कोई कन्वेंशनल थेरेपी आप में काम नहीं करेगी, तो आप ओजोन थेरेपी की मदद ले सकते हैं. उसके साथ हम बहुत अल्कलाइन डाइट और न्यूट्रिशन भी देते हैं, जिससे आपका काफी इम्प्रूवमेंट हो सकता है. सो इन कैंसर पेशेंट्स को हम और माइनर देते हैं, जिसके वजह से उनका जनरल वेलबींग बहुत ही अच्छे से बढ़ जाता है और वो काफी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है. सो उनका इम्प्रूवमेंट में अगर हम देखें तो उनका इम्यूनिटी बढ़ जाता है, ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है. सो ये हमारा 83 पेशेंट्स का ये है जो वे बैक इन 2007 हमने रिसर्च पेपर किया था इसके ऊपर, और ये इसका इम्प्रूवमेंट है. यानी अगर आप रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं तो बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं, बहुत सारे लोग कीमोथेरेपी 2-3 सेशन लेके आधे से छोड़ देते हैं. अभी वो क्यों छोड़ देते हैं? बिकॉज वो साइड इफेक्ट्स कंट्रोल नहीं हो सकता है और साइड इफेक्ट्स बेयर नहीं कर सकते. तो जब हम ओजोन थेरेपी करते हैं तो आपको रेडिएशन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं. तो आप अगर ये ग्राफ देखें तो ओजोन थेरेपी ना लिए हुए लोग एकदम ही बहुत सारे ड्रॉप आउट्स है, और ओजोन थेरेपी जो ले रहे थे उनमें काफी इम्प्रूवमेंट देखा गया है. उनका क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो हम बोलते हैं कि हम स्टैटिस्टिकली तो देखते ही है, उसके साथ एनर्जी लेवल्स बढ़ाने का, चेयरफुलनेस, फीलिंग ऑफ चेयरफुलनेस, इम्प्रूव्ड एपेटाइट, बेटर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में काम करता है. एट द सेम टाइम ट्यूमर मार्कर कम करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है. अब आया osteoarthritis. So in osteoarthritis, more than 80% of the patients have 50% relief of the symptoms, relief in pain, relief in stiffness and mobility, यानी आपका मूवमेंट बेटर कर देता है, और less consumption of painkiller. So ozone therapy works wonderful in osteoarthritis. हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में इंट्राआर्टिकुलर ओजोन इंजेक्शन, एट द सेम टाइम पेरी आर्टिकुलर यानी घुटने के अंदर और घुटने के आजू बाजू इंजेक्शन करके उसका सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, मोबिलिटी बढ़ाते हैं. एट द सेम टाइम आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाता है. आप काम पे जा सकते हैं, अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं. तो ये इट इज अ प्लस पॉइंट विद ओजोन इंजेक्शन. और इन्फ्लेमेशन कम करता है, सूजन कम करता है. ये फ्रोजन शोल्डर है. अभी आप इनको देखो, इनका लेफ्ट साइड का ये मूवमेंट जरा भी नहीं है, हाथ ऊपर नहीं जा रहा है. ओजोन थेरेपी का इंजेक्शन दिया उनको, जो हम ओके. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इम्प्रूवमेंट अगर आप देखें तो पेन रिलीफ बहुत ही अच्छे से आता है. एट द सेम टाइम स्टिफनेस और मोबिलिटी इंप्रूव हो जाता है. तो स्टिफनेस कम होके आपका वॉकिंग और आपका एक्सरसाइज करने का इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं. एट द सेम टाइम आपका पेन किलर कंजम्पशन भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है. इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन के वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है, फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करता है. एट द सेम टाइम पेन कम होके आपका फंक्शनिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर देते हैं. सो ये फ्रोजन शोल्डर का हम बता रहे थे. आप जैसे ये इंजेक्शन किया एट द शोल्डर, it works as analgesic and anti-inflammatory effect, and ozone is excellent for non-surgical treatment. It is non-surgical treatment for any pain. And now you see her hands are completely free. So post ozone, good range of movement, very less pain, and you see how beautifully she can lift her hand. So this is how ozone therapy injections work. Diabetes mellitus
में हम बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं. एट द सेम टाइम आपका डायबिटिक मेडिसिन पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाता है. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, यानी अगर आप रीनल कॉम्प्लिकेशंस बोले, या फिर पेरिफेरल न्यूराइटिस है, या फिर डायबिटिक रेटाइनोपैथी है, इन सब में क्या होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी ब्लड वेसल्स थिकन्ड या एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं, और उसके वजह से वहां पे सर्कुलेशन कम हो जाता है. अगर आप ओजोन थेरेपी करते हैं तो हम सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, तो आपका वो एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस कम हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और इट इम्प्रूव्स द जनरल वेलबींग. एट द सेम टाइम इट इम्प्रूव्स मूड, और डिप्रेशन जैसे जो एंडोर्फिन लो होने से होता है. सो जनरल जो मूड अपलिफ्टमेंट है, योर फीलिंग ऑफ वेलबींग इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन ओजोन थेरेपी. सो ये डायबिटिक फुट है. अगर आप देखें तो डायबिटीज पेशेंट्स का एक मेन है कि उनके शरीर में सर्कुलेशन कम होने के वजह से हीलिंग नहीं होता है. हीलिंग नहीं होता है तो कभी भी कोई भी वूंड हो जाए या कुछ लग जाए तो उसको आप जल्दी से उसका कंप्लीटली रूज नहीं आती है, या इम्प्रूवमेंट ऑफ हीलिंग नहीं दिखता है, वूंड क्लोजर नहीं होता है. तो ओजोन थेरेपी से हम इन्फेक्शन कम करके वूंड क्लोजर का इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं. ऐसे बहुत सारे ये हमने पेशेंट्स डायबिटिक फुट के हम ट्रीट करते हैं ओजोन थेरेपी से. Psoriatic arthropathy. Now, psoriasis is also a very, very, very challenging and frustrating disease. अगर किसी को psoriasis है तो आप सोच सकते हैं कि उसका पूरा ध्यान उसी कंडीशन पे लगा रहता है. तो ये जो पेशेंट है उसको लास्ट 8 years से psoriasis था, and he was treated with oral and topical steroids. There was no relief in this patient. हमने उसको ओजोन स्टीम चेंबर दिया. जो हमारा स्टीम चेंबर है वो स्वेदन पेटी जैसा होता है, जहाँ पे आपका हेड इज आउटसाइड एंड योर होल बॉडी इज इनसाइड. या फिर हम ओजोन बैगिंग कर सकते हैं, जिसके वजह से पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया को ओजोन ऑक्सीजन मिक्सचर पहुंचा सकते हैं. उससे आपका पूरा सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हीलिंग बेटर होता है, और इन्फेक्शन कम होता है. और वही पेशेंट का अगर आप देखो तो उसके पूरे वूंड्स का जो पैक्युलर अगर आप देखें, ये पहले का जो वूंड है उसमें रेज स्किन है, स्किन थिकन्ड हो जाती है, और ट्रीटमेंट के बाद एकदम स्किन फ्लैट और नेचुरल लेवल पे आ जाती है. सो उसको पेशेंट ने कंटिन्यूसली 4 वीक्स तक ओजोन लिया, जिससे उसका स्किन इचिंग कम हो गया. At the same time, pain and swelling decreased. Or also no itching and pain. The wound had started drying up and it improved very nicely. So a patient completely itching free. यानी आप अगर कितना रिलीफ महसूस कर सकते हैं पेशेंट्स, वो देखें कि इचिंग फ्री हो जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं. सेम टाइम पेशेंट का वेलबींग बहुत अच्छा हो जाता है. तो ये काफी अलग अलग स्टेजेस पे फोटो निकाले हैं, और जो आपने पहले वाले फोटो देखे अभी कंप्लीटली क्लीन फोटो है पेशेंट के. सोराइसिस ही है. सेम वन अनदर पेशेंट विथ लेडी हैविंग सोराइटिक स्किन, और उसके बाद वो कंप्लीटली उसको हीलिंग हो गया ओजोन थेरेपी के बाद. अभी लेग अल्सर्स एंड क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी. तो अगर आप लेग अल्सर की बात करते हैं तो लेग अल्सर्स वेरिकोज वेन के वजह से होते हैं, डायबिटीज के वजह से होते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट वजह से होते हैं. हम ओजोन थेरेपी करके उनका इम्प्रूवमेंट देते हैं. एट द सेम टाइम उनका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है. एट द सेम टाइम उनको कोई भी लोकल एंटीबायोटिक या उसकी जरूरत नहीं पड़ती या कम पड़ती है. ये इसका फोटोज आप दे सकते हैं. बहुत ही डीप वुंड्स हम ओजोन थेरेपी से काफी हद तक उसको हील कर देते हैं. Lipolysis, inch loss, muscle tone and improvement. Now
anti-aging is a huge field, and we have huge work in in how to get the spot lipolysis. So when we do ozone therapy for these patients, we do steam, we do injections, localized injections for lipolysis, and it improves your muscle tone. We also help you to correct. So now many a times when the patient is huge and with a big belly, they always have backache. Now we have so many orthopedic, surgeons requesting us to use ozone therapy, reduce the fat, and then they can work on their back so that their muscle tone is better and they can function better. So ozone therapy in general is good for prevention of the disease as well as for the treatment of the disease. It maintains your antioxidant balance, यानी आपका oxidative stress कम करता है. It normalizes the glucose in blood, so sugar levels कम करते हैं. Improvement in sugar, diabetic complications है. Regulates the level of nitric oxide and maintains the vascular tone. It also improves your adenosine and its receptors. So vascular tone improvement होने से mobility improve हो जाती है. It reduces the inflammation, pain और swelling कम करते हैं. At the same time, infection कम करके antibiotic का improvement दिखाता है. So all this is in order to favor the better quality of life. Ozone therapy can be used. And here the slides are over. You can ask any questions if you have. One by one, I can take the questions, Dr. Jalpa. Arthritis. Okay, for arthritis, एक question chat में ज्योत्सना मजेठिया ने पूछा है. For arthritis, this is permanent solution or temporary? Now, for arthritis, as you age, आपका जो cartilage है वो wear and tear हो चुका है. हम ओजोन से आपका wear and tear रुकाते हैं at that moment. पर अगर आप वही आपकी जो cause है उस पे काम नहीं करेंगे तो कोई भी treatment permanent नहीं हो सकती है. ठीक है, तो अगर वेट की वजह से आपका आर्थराइटिस आया है, किस चीज की वजह से आर्थराइटिस आया है, वो देखना भी उतना ही जरूरी है. तो आर्थराइटिस के लिए हम 6 to 9 months का आपको इम्प्रूवमेंट दे देते हैं. उसके साथ अगर आपने एक्सरसाइज किया, उसका मसल टोन इम्प्रूव किया, तो इट विल हैव अ बेटर रिजल्ट. सो इट शुड हेल्प यू. बट what I would say is you have to work on the cause also. So अगर हमारे पास आता है तो हम देख के बोल सकते हैं कि क्या है, और ग्रेड भी देखना पड़ता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में. ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 कैन बी बेनिफिटेड. अगर आपके ये अगर नी है आपका और अगर वो ऐसे ज्वाइन हो गया है नी जॉइंट नी के बोन को, तो इसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट लॉस. ये कंपार्टमेंट लॉस हो चुका है तो ओजोन थेरेपी क्या कोई भी थेरेपी नहीं होएगा, ओनली इंजेक्शन ऑपरेशन करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपका कंपार्टमेंट लॉस नहीं हुआ है तो फिर आपको बेनिफिट हो सकता है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रकाश मोटवानी. कैन इट बी यूज्ड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन फॉर जनरल बेसिस? इट कैन बी यूज्ड फॉर जनरल बेसिस. आप हमारे क्लिनिक में हम प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज या हम नेचुरल इम्यून बूस्टिंग ये सब ट्रीटमेंट भी करते हैं. तो ऑफकोर्स इट विल बी हेल्पफुल इन जनरल डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो. Do you have clinic in or therapy is administered in the hospital where patient is admitted? पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो ओजोन थेरेपी करने के लिए वो हॉस्पिटल के डीन की परमिशन लगती है या फिर वो डॉक्टर इंचार्ज की परमिशन लगती है. हम काफी सारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, पर इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट एंड पेशेंट्स इंचार्ज डॉक्टर. सो आई वुड लाइक कि जो पेशेंट है उसका डिटेल्स अगर मिले तो हम और कुछ ज्यादा डिटेल में बोल सकते हैं. But it can be done provided the hospital gives permission. How do you treat diabetic foot actually? So we treat diabetic foot with rectal insufflation and we treat diabetic foot with bagging. At the same time, local infiltration of the
वुंड भी करते हैं. So there are around 4-5 different ways of using ozone. Ozone का ऑयल है, रैपिड हील ऑयल, वो भी हम यूज करते हैं. तो ये वूंड देखने के बाद और वूंड को कैसे है, हमने फोटो दिखाए, वैसे वूंड्स तो हम इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं. बहुत बड़े बड़े वूंड्स भी आते हैं जिसमें हम एंटीबायोटिक सब कुछ एक अंडर वन अम्ब्रेला यूज करके हम पेशेंट को इम्प्रूवमेंट देने की कोशिश करते हैं. Any oral way of consuming? ओजोन इज अनस्टेबल गैस मॉलिक्यूल. अगर आपको ओरली लेना है तो हम आपको ओजोनेटेड वाटर बना के देंगे जो आपको 6 घंटे में कंज्यूम कर देना है. पर वो आपको डायबिटिक वूंड के लिए नहीं कर सकते. अगर ओरल जो है वो सिर्फ गैस या एसिडिटी या उसके लिए ही है, जो ओजोनेटेड वाटर आप घर पे लेके पी सकते हैं. पर अगर ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट आपको सेंटर में आके ही करवानी पड़ेगी. ओके. ओनली थिंग इज इन आवर ओजोन वी हैव एंटी एसिडिटी ऑयल. तो आपके गट के लिए हम ओजोन थेरेपी काफी अच्छे से गट के लिए वो कर सकते हैं. That oil is how it is consumed? You can take 4 to 5 drops of that oil on empty stomach or at sleep at bedtime, and you can drink little freely water. available? Is it freely It is available. No, so it is available with ozone doctors. So अगर आप हमारा क्लिनिक we are in Bisleri Charitable Trust here. So Bisleri Tower में अंधेरी में हमारा क्लिनिक है. हमारे पास हम ही बनाते हैं तो हमारे पास तो है ही है. हमारे डॉक्टर्स ऑल ओवर मुंबई में we have more than 150 doctors practicing ozone therapy which are trained with us. So it is not our center, but these are the doctors trained by Ozone Forum of India. तो हम आप उनसे भी मंगवा सकते हैं. So अभी यहाँ पे दीपा एस ने पूछा है, can it be used for paralysis and senior citizens? Yes, it can be used. अगर paralysis up to 1 year है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. More than 1 year ओल्ड है पैरालिटिक पेशेंट तो उनमें मसल डिस्ट्रक्शन पैटर्न सेट हो चुका है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए काफी टाइम लगता है. बट पैरालिटिक पेशेंट्स अगर तुरंत यानी आपको सपोज 3 महीने पहले या 6 महीने पहले हुआ है और रेसिडुअल कुछ बाकी है तो वो हम डेफिनेटली करेक्ट कर सकते हैं. Is there a therapy work on paralyzed patients? That's what I just answered. Yes, it can be helpful. Cost of one session. Now, cost of one session depends upon the doctor and depends upon the center. Ours is Bisleri Charitable Trust Clinic. हमारे यहाँ पे 100 to 200 rupees में एक ट्रीटमेंट होता है पर सेशन. तो अगर आप 10 से 20 लेना है तो आपका अराउंड 2000 रुपया तक आपका खर्चा हो सकता है. So ours is supported by Bisleri Charitable Trust. So हमारे सेंटर में सबसे लो कॉस्ट ट्रीटमेंट होती है. लेकिन अगर आपको कुछ और भी कुछ जानना है या कुछ है तो आप डेफिनेटली मेरा नंबर डॉक्टर कुमार से ले सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ चैट में, तो आप वहां से लेके हम जानकारी ले सकते हैं. या आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और ozoneforumofindia.com, और उसमें काफी जानकारी पेशेंट्स के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है. तो आप वो केस हिस्ट्रीज है बहुत सारी जो आप देख के आप आपके क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं. ईमेल कर दीजिए हमको, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्या है? ओके, कैन इट बी सीनियर सिटीजन? Any other special information you would like to give to people? So ozone is this is what so अभी जो pandemic चल रहा है, okay, so let's talk about a little bit. I have a huge presentation on that also. So ये pandemic और ये disease अभी हमको क्यों affect कर रहा है इतना, क्योंकि हम जो general public है has moved from good immunity to low immunity because of our junk food, because of our junk lifestyle, because of our day-to-day, hectic pressures, sedentary lifestyle, stress. कितना बहुत सारी जो चीजें हैं
हमने अपने आप को पीछे रख के अपनी प्रायोरिटीज, अपने काम को या अपना जो एंटरटेन है उसको कर दिया है। तो ये चांस है कि यू कैन फोकस बैक ऑन योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। अभी हम ये इम्यूनिटी की जब बात करते हैं तो वी नीड टू इम्प्रूव ऑन योर न्यूट्रिशन, ऑन योर ऑक्सीजनेशन, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये 5 प्रिंसिपल है: गुड न्यूट्रिशन, गुड वाटर इनटेक, गुड एक्सरसाइज, गुड ऑक्सीजनेशन एंड गुड स्लीप। अगर ये 5 चीजें बराबर है तो आपको कोई भी कोरोना वायरस या कोई भी आपको डिसीज नहीं हो सकता है, अगर ये आपका सही है। एक भी फॉल्टर हुआ तो बैलेंस कम हो जाएगा और हो सकता है। सो अभी गुड न्यूट्रिशन में आई वुड से यू शुड ऑलवेज लुक फॉर B12 एंड D3 और विटामिन सी, जिंक एंड विटामिन ई एंड आयरन। अगर ये आपने बैलेंस कर दिया आपके फूड में, विटामिन सी आप हाफ लेमन एवरीडे ले सकते हैं। विटामिन डी आप ओरल टैबलेट्स या ओरली लिक्विड डेप्यूरा करके एक लिक्विड आता है वो ले सकते हैं। विटामिन डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट नेचुरल एंटी बायोटिक अवेलेबल इन नेचर। तो विटामिन डी ले सकते हैं। B12 आपके मसल को स्ट्रेंथ देगा। तो ये अगर न्यूट्रिशन ठीक हो गया, 2 liters of water in a day is most important. So उसमें around 500 ml to 1 liter you can have warm water and 1 liter you can have normal water. So 2 to 2.5 liters of water is most important. 30 minutes exercise is third most important. So when you do 30 minutes exercise, take pranayam. Do pranayam because it is giving more oxygen to the tissue. At the same time, do more of cardio. So थोड़ा jumping करे, थोड़ा jogging करे, थोड़ा प्राणायाम करे या फिर सूर्य नमस्कार कर ले। So ये आपका हो गया good exercise, good water and good nutrition. Now oxygenation. ऑक्सीजनेशन के लिए डीप ब्रीदिंग प्राणायाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं हुआ उससे तो ओजोन थेरेपी तो है, बहुत सारे क्लिनिक्स चालू है ओजोन थेरेपी के। अगर नहीं है तो पोस्ट लॉकडाउन भी हो जाएंगे। कोविड कहीं भागा नहीं जाने वाला है, वो तो एक बार चालू हो गया तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट और बढ़ जाने वाले हैं। और दी गुड स्लीप, बिकॉज अगर आप अच्छे से सोते हैं तो एंडोर्फिन्स जनरेट होते हैं। एंडोर्फिन्स की वजह से आपका फीलिंग ऑफ वेल बीइंग इज वेरी गुड। सो ये अगर आप 5 बैलेंस कर ले तो आपका न्यूट्रिशन और आपका इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ जाएगा और यू can change your body type and you can improve your general well-being and immunity power. So और questions इधर आ रहे हैं बहुत। how can we use it at home for general benefit? You can't use it at home, you have to go to the doctor. Only thing you can use it at home is we can give you ozonated water. Is ozone therapy age specific or benefit? Ozone therapy is not age specific. We can treat from 6 months old baby to 80-year-old person. Any age we can treat. Depending upon the disease we treat. How do you treat diabetic foot? I just answered. We do bagging, rectal, and we do other applications like saline, ozonated saline. For diabetes, how many sittings we need? For diabetes, we need around 20 sessions. 10 to 20 sessions is for general well-being. It can be work. Sciatica में treatment होगा क्या? Okay, sciatica means your sciatic nerve is compressed. We do muscle tone improvement. उसके साथ अगर आप ओजोन थेरेपी साइटिका के लिए करेंगे तो इम्प्रूवमेंट इन मसल होगा और ये जो कंप्रेशन होता है बार बार वो कम हो जाएगा और आपको पेन रिलीफ होता है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर लेवल ऑफ पेन। So more consultation is required for sciatica. If I want to learn, then educational, we train only doctors. So if you want to learn ozone therapy, you need to be 5.5-year degree doctor. That is most important because as you see, we have injections, we have all other treatment modalities जहाँ पे वेन में भी ओजोन देते हैं, अलग अलग तरीके से ओजोन देते हैं। तो प्रिफरेबली आप डॉक्टर होए तो बेटर है फॉर एजुकेशन, फॉर लर्निंग ओजोन थेरेपी।
What is the ozone therapy delivery system? So we have ozone machine, जो मैंने फोटो में दिखाया था. Ozone machine को ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं. ये ozone machine is pre-calibrated, which gives a certain amount of current for improving the current, and it improves your, it makes certain amount of ozone oxygen mixture. Ozone से thing. ओके, सो सोराइसिस के एक बार आप ओजोन से ठीक हो गए, फिर हम आपको ऐसे न्यूट्रिशन की एडवाइस देंगे या ऐसा चेंजेस बताएंगे जो आप रेगुलरली कर सकते हैं और इस में ही रखे वापस. सोराइसिस इज रिलेटेड टू 3S: स्ट्रेस, स्टमक एंड स्लीप. अगर स्ट्रेस और स्टमक में कुछ गड़बड़ है या स्लीप में कुछ गड़बड़ है, ये स्किन डिसीज आता ही है, which is the another S. So you need to improve your general well-being. और जिस कॉज की वजह से सोराइसिस हुआ है उसको हम एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं, जिसके वजह से आपको बेटर हो सकता है. The effects of ozone therapy last for 6 to 9 months. जो I think प्रिया ने क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर प्रतिमा सांके. Are the effects are long lasting? So ozone therapy का इफेक्ट आपके आरबीसी के लाइफ स्पैन पे है. अगर आपके आरबीसी का लाइफ स्पैन यूजुअली 60 to 90 डेज है, तो आपको ओजोन थेरेपी का क्रॉनिक कंडीशन में इतना बेनिफिट रहेगा. उसके बाद अगर आप 10-10, सो हम लोग इसको मेंटेनेंस डोज बोलते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम यू माइट हैव टू रिपीट अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन है तो. Where should we meet you, diabetic and sciatic patient? If I want to learn. ओके, सो मेरा अंधेरी का क्लिनिक का एड्रेस आपको ये वेबसाइट जो दिख रहा है उस पे से मिल जाएगा. कॉन्स्टिपेशन के लिए ओजोन थेरेपी, पहले तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए आप अपना फाइबर बढ़ाइए, आपका यूजुअल न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए, पानी अच्छे से पीजिए, प्रोबायोटिक लीजिए. अगर ये सब नहीं हुआ तो हम तो है ही, वी कैन ऑब्वियसली improve your condition. Dr. Millie, what is the cause of this chronic fatigue? Chronic fatigue. How do you deliver? So cause of the chronic fatigue is oxidative stress. Okay, chronic fatigue यानी आपका body is doing anaerobic respiration. Anaerobic respiration जो हम बोलते हैं, या कोई डिसीज है या कोई चेंजेस बॉडी में हुए हैं, उससे आपको कम एटीपी मिलता है. तो अगर आप ओजोन थेरेपी लेते हैं तो हम आपका एरोबिक रेस्पिरेशन पे शिफ्ट करते हैं, जो आप ऑक्सीजनेशन के वजह से होता है. सो क्रॉनिक फटीग ओजोन थेरेपी से बहुत ही अच्छे से ट्रीट हो जाता है. पेशेंट फील्स एक्सट्रीमली वेल. आप कहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से मैं आपको डॉक्टर्स को गाइड कर दूंगी, क्योंकि हमारा क्लिनिक तो एक है, पर आप पूरा मुंबई बहुत बड़ा है and you can't travel everywhere. So we have centers from Churchgate to विरार, भाईंदर. ये यहाँ मेरे डॉक्टर्स, हमारे ट्रेंड हुए डॉक्टर्स बहुत सारी जगह पे है, तो जिसको भी जहाँ पे भी चाहिए तो हम आपको गाइड कर सकते हैं. Okay, please schedule the separate session for COVID-19 pandemic. I can give you immunity talks on COVID-19. We have wonderful session on that also. Can normal person take? Yes, you can take. मैं अपनी हेल्थ बनाने के ऐसे ही रहे इसके लिए ओजोन थेरेपी लेती हूँ. So you can improve your general well-being, and it improves skin and complexion. So it depends what you are expecting out of it. We have many treatments with skin and complexion. So the patient one-on-one consultation is required. Syncope, is it benefit? For syncope, yes, it will be beneficial, but we need consultation. So ऐसे इस पे नहीं हो सकता है.
Uh, are nurses qualified to learn? Uh, no, ma'am. I'm so sorry. Nurses can assist doctors to do it, but I'm so sorry. You can't have your own clinic of ozone therapy. Is normal person can take. You can take ozone therapy very well for normal, for general well-being. You can take. Okay. So I think I've covered all the questions up till now जो भी आए हैं chat पे. Doctor, any more questions? Ashok Sachdev, जिनका mic I चालू can है वो. see, Thank Dr. you very Millie, much. Yes, tell me. I can see just one question unanswered. Red moles across the body, not painful. Can अच्छा, that वो be just treated? okay. It has just come. Sorry. What about alopecia? Also is an important Yeah, question. just now one more Okay. question came. What about alopecia? So red moles across the body, non-painful, can be treated. Now, this is a very vague symptom. This is not a disease. Okay. Now, red moles, we need to check your platelet count. अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो आपके बॉडी में छोटे छोटे दाने आ सकते हैं, तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा. इट कैन बी, अगर इफ इट इज रिलेटेड टू एनी मेडिकल complaint or any, if it is not genetic, we can treat it. Okay, let's be opposite way, it can be helpful. uh, Now, okay, alopecia. Now for alopecia, is it alopecia areata? Is it male pattern baldness? Is it what is the alopecia? Alopecia areata में ozone therapy बहुत अच्छे से काम करता है. We do something called scalp bagging. Then we do some ozone hair oil application. At the same time, we improve their protein and biotin. We reduce their junk food, and we eliminate any the what you call it vikrut ahar ways, and you generalized you improve the patient in overall. It does help. अभी जगदीश जी ने पूछा है यूरिक एसिड कैन बी ट्रीटेड. Uric acid can be treated, but I would prefer you first rescue the diet. Do the diet properly, as uric acid is more of a protein digestion disorder. You need to reduce the protein and improve your digestion. Uric acid patients को एक simple solution है, एलोवेरा और जैगरी का जूस इक्वल क्वांटिटी में लेके उसको फ्रिज में आप रख दीजिए. ओके, और 8 दिन के बाद वो एलोवेरा और जैगरी का जूस 2 स्पून सुबह 2 स्पून शाम को अगर आप लेंगे तो आपका यूरिक एसिड धीरे धीरे कम हो जाएगा. ठीक है. What is Sunil Sharma is asking, normal person takes therapy, what benefit expected? Normal person takes benefit. So it all depends. One, for normal person, we see what we see is CRP levels, और on paper अगर देखना है तो CRP levels देखते हैं, hemoglobin देखते हैं, या फिर उनका HB count देखते हैं. ओजोन थेरेपी से हीमोग्लोबिन काउंट अच्छा होता है, एट द सेम टाइम सीआरपी कम हो जाता है, यानी इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, और उससे ऑल्सो वी सी एनर्जी लेवल, सो वी सी जनरल वेलबींग. सो हम एपेटाइट, स्लीप और डेफिकेशन का पैटर्न सी करते हैं, तो डिटॉक्स का पैटर्न देखते हैं. अगर वो बेनिफिट है तो इट विल बी we can see how patient improves, but definitely for general well-being you can use. Kidney stone, it is a structural problem. Agar kidney stone ke liye basically you need to hydrate yourself very well. Ozone therapy can be used, but it is not direct cure or not direct treatment for it. For syncope, we can work, but we need to do consultation one-on-one. So you can connect with me or email me your details. I will talk to you personally. I will talk to you on email. Alopecia can be helpful. Alopecia का आंसर अभी दिया मैंने. It can be helpful. अभी this alopecia can be all different types.
So अगर वो ऑटो इम्यून एलोपेशिया है तो अच्छे से हो जाता है. इन्फेक्टिव है उसको थोड़ा it's a little rigid problem. It can be helpful. I need to see the patient. Gallbladder stones and kidney stones, the similar thing. You need to work on your diet. You need to work on your hydration, and it can work very well. Does it work in insomnia? Insomnia के लिए अश्वगंधा लीजिए सर. कौन है डॉक्टर प्रकाश, मिस्टर प्रकाश मोटवानी. Ashwagandha is very good for insomnia. You can take liquid passiflora. It also works very well. Ozone therapy से हम जो ear insufflation करते हैं उससे insomnia काफी ठीक हो जाता है. पर it is not a solution for your treatment, for your pill. Stress pill का solution ozone therapy नहीं है. आप कुछ भी करें और आपको नींद नहीं आती है तो ozone therapy can be helpful. I think we have answered all the questions. Yes, thank you. So I think any more questions you can just share. Yes, we will be sharing your contact details for sure. Yeah, sure. Fine. So thank you, Dr. Millie, so much for such an informative session on ozone therapy. I'm sure everyone is very happy and they would definitely like to hear from you again. Okay. So बहुत सारे ये we'll schedule it as in when possible. Sure. Yeah, cyst, please continue. So the cyst actually, cyst is again a surgical treatment. You need to have a surgically removed. पर PCOD में बहुत अच्छा result है. अभी cyst, there are very, as you know, Dr. Jalpa, there are more than 100 cysts. तो हम बहुत generalize नहीं कर सकते हैं. अगर आपको treatment या फिर specific है, you can definitely email to us at info@ozoneforumofindia.com and I would love to answer your queries. Fibroids के लिए ozone therapy does work, but you have to take hormonal support also. Thank you very much, and I think I should, Thank you, Dr. Millie. Thank you, Mr. Ashok Sachdev, and thank you, Kumarji. I mean, I know him for last 6-7 years. We've been sometimes we talk, on WhatsApp. But अभी आज पहली बार ऐसे lecture देने का time. I've tried to connect with him. Thank you very much. Thank you. Yeah, Dr. we would Millie. like to welcome you again for some other session also. And on behalf of Sixth Sense Research Association and Holistic Medicine, I thank you very much for participating and giving us so much of knowledge. We are very happy with what has transpired. I hope I have made it like a layman, because doctors जब बात करना चालू करते हैं वो तो बहुत सारा medical terminology. No, it is perfect. We enjoyed it very good. Great it was. Thank you very much, Doctor. Thank you, Dr. Jalpa. Thank you, everyone. Thank you for attending. Thank you, Jalpa. Thank you. So just a quick announcement about tomorrow's session, which will again be at 5:30 on simple ways to get benefit from Vastu. It will be taken by Mr. Ashok Sachdev. So everyone, hoping to see you all tomorrow again. Thank you. Good day, Jalpa. Thank you very much. Thank you. Good day, all of you.